Yes, students, just we have finished chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. Now we have to start with chapter number 9, that is Strategies for Enhancement in Food Production. Most of topic are related to genetics only, that's why I have started this chapter here. So, as the title indicate, strategies for enhancement in food production. That means we have to increase food production. As we know, day by day the population of India and world increasing, but the land area है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, घटता जा रहा है due to industrialization, due to we can say construction of building, construction of road and other things. So that means in a small area we have to grow more crop, more food, or we have to take the more, we can say, yield. Then what are the different ways by which we can enhancement in the production of food? Now first talk about what are the different source of food and what are the different field where we can say enhance the food production. Now the very first is and most important is एग्रीकल्चर. उसके बाद में हम बात करें तो जो डेयरी फार्म है, आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट पोल्ट्री फार्म, आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट बी कीपिंग और वी कैन से एपीकल्चर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से दैट फिशरीज. ओके, और वी कैन से पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर. So by agriculture, by dairy farm, from agriculture we get different crops and fruits. From dairy farm से हमें we can say milk, the main product is milk है, उससे meat भी है. Second, if we talk about poultry से poultry से egg भी है, meat भी है. If we talk about bee keeping तो इससे हमें क्या मिलता है, that means the honey is the main product. उसके अलावा जो bee hive है, wax है, that is also used in for some medicinal purpose or for some other industries like cosmetics है. If we talk about fisheries, तो fishery that is the main source of protein जो fish है. Okay, these are the different field. उसमें हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टू एनहेंसमेंट द प्रोडक्शन ऑफ फूड. नाउ व्हाट टाइप ऑफ एनहेंसमेंट वी वांट? देयर आर बेसिक टू थिंग्स. वन इज नोन एज वी कैन से क्वांटिटी एंड सेकंड इज ए क्वालिटी. लाइक वी आर कंज्यूमिंग द सेम grain or that is wheat grain. अगर wheat grain ऐसी हो, that means in wheat grain mainly there is a starch. अगर wheat grain ऐसी हो जिसमें कुछ प्रोटीन का कंटेंट हो, and if there is a iron content is more in wheat, so that would be more, we can say, beneficial for our health or we can say our diet. So that means we have to increase or enhance quantity as well as quality. अब quantity में जो main character है, that is we can say yield only जो main character है. एंड इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटी तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट हो सकता है, उसमें कोई मिनरल न्यूट्रिएंट का कंटेंट हो सकता है. ओके, दिस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड आर डिजायर कि व्हाट इज आवर डिजायर, व्हाट वी वांट, व्हाट कैरेक्टर वी वांट टू एनहांस इन ए क्रॉप. ओके, तो different fields are there. So mainly we will discuss about agriculture, then dairy farming. Agriculture में हम बात करेंगे plant breeding की. In dairy farm we will talk about the animal husbandry or animal breeding. Then very small topic of poultry farm, beekeeping and fisheries. Now, so एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन Borlaug. He is known as father of green revolution. Okay, इन्होंने वैरायटी डेवलप की थी सेमी ड्वार्फ
wheat variety. He worked in Mexico. तो इन 1940s के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का. देन फिर वो 1950s में वी कैन से एशिया में एंड अमेरिका में भी दैट मीन्स वो रिवॉल्यूशन आया. तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस व्हीट वेराइटी, जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हुआ और व्हीट वो वी कैन से मेजर क्रॉप है. तो जिससे एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया. दैट मीन्स जो जो ग्रेन क्रॉप बैंक का प्रोडक्शन है वो क्या होना शुरू हो गया, राइज होना शुरू हो गया वी कैन से पूरे वर्ल्ड में. नाउ फिर एक इंडिया में साइंटिस्ट थे नॉन है ही इज MS स्वामीनाथन. ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन को. उसके बाद फिर और कुछ रिवॉल्यूशन आए, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन आया फॉर मिल्क. ये जो इंडिया में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये बात थी 1960s की. व्हाइट रिवॉल्यूशन आया 1970 में. फिर एक और आया दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन. ये था फिश के लिए और ये हुआ इंडिया में 1985 में. तो दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट रिवॉल्यूशन. चाहे वो फिर येलो रिवॉल्यूशन था 86-87 में फॉर ऑयल सीड और ऑयल क्रॉप. तो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था, व्हाइट रिवॉल्यूशन था, ब्लू रिवॉल्यूशन था, येलो रिवॉल्यूशन है. These all revolution for the we can say enhancement in a particular type of food or particular type of production. और इसका मतलब क्या था, to feed the maximum people. ओके, ताकि स्टारवेशन का कोई केस ऐसा ना हो या कोई ऐसी चीज ना बचे. तो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसमें किस पे ज्यादा फोकस किया, दैट मीन्स ग्रेन क्रॉप पे. व्हाइट रिवॉल्यूशन आया तो डेयरी पे फोकस किया. देन ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन पे फोकस किया. ओके, सो दीज आर द वी कैन से बेसिक ऑफ द this chapter. So these are the different strategies we have to do, how we can improve the production or we can say quality of a crop. Now suppose we have to develop a variety, we can say variety of our desired traits. हमें अपने डिजायर्ड ट्रीट की एक वैरायटी डेवलप करनी है. लाइक देयर इज ए वन वैरायटी दैट इज विद हाई yield and another variety which is we can say disease resistance. In one variety yield is high but this is not resistant to disease. Another variety that is disease resistant लेकिन इसकी yield है वो कम है. Somehow if we can make cross between them, जैसे मेंडल ने किया था, तो जैसे हाई yield है इसको लो, जैसे सिंपल क्रॉस लो मेंडल वाला, लाइक यहाँ पर क्या आएगी हाइब्रिड बना. इन हाइब्रिड वी कैन से हियर बोथ कैरेक्टर दे कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ और वी कैन सेलेक्ट आवर डिजायर्ड. अब हमने क्या किया, एक हाइब्रिड प्लांट लिया, उसको क्रॉस करवाया डिजीज रेजिस्टेंस से. इन F1 में हमारे पास देयर इज ए चांसेस ऑफ हाई यील्ड प्लांट, देयर इज ए चांसेस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, देयर इज ए चांसेस ऑफ हाई यील्ड प्लस डिजीज resistance, because in F1 both sided characters are there in F1 generation and our desirable is
हाई यील्ड प्लस डिजीज रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, एक फील्ड ट्रायल करते हैं। उस फील्ड ट्रायल में हमने दैट मीन्स मान लिया 1000 प्लांट्स हमने ग्रो किए। अब उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे जो हाई यील्ड भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे इन द फील्ड। यील्ड कैसे आएगी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, डिजीज रेजिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, लाइक ए कॉमन डिजीज है, लाइक वी कैन से एक रस्ट है, डिजीज है दैट इज वेरी कॉमन। हमने क्या देखा कि आउट ऑफ 1000 प्लांट 10 प्लांट्स ऐसे थे जिनमें हाई यील्ड आया एंड उनमें रस्ट नहीं था, नो रस्ट, और वी कैन से लेस इन्फेक्शन ऑफ रस्ट था। तो हम उनको क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब आगे हमारा क्या प्रोसेस होगा, दैट दिस कंडीशन इज नॉट होमोजाइगस कंडीशन बट वी वांट होमोजाइगस कंडीशन। इफ वी वांट होमोजाइगस कंडीशन तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो F1 है, F1 को बार बार क्या करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा। इट कुड बी 6 to 12 जनरेशन तक भी हो सकता है। इट कुड टेक 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 10 जनरेशन और 12 जनरेशन और सो ऑन। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा कि ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग इसमें क्या आ जाएगा, होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। ओके, और जो होमोजाइगोसिटी है वो हमारी क्या थी, डिजायर्ड थी। नाउ सी हियर, लाइक F1 पे गए, F1 से हम गए F2 में, तो F2 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, आर डिजायर्ड, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। देन F3 में भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे डिजायर्ड का। देन F4 में भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे डिजायर्ड का। ओके, इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस, लाइक जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, लाइक द वेरी फर्स्ट, लाइक समथिंग इज देयर, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम के बाद वजह से रिटर्न हुआ, रिटर्न में हुआ प्री, प्री के बाद हुआ मेंस, मेंस के बाद हुआ इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो समझो कि ये हमारी थी F1 में वही है जो ऑनलाइन एग्जाम में पास हुई, यानी कि प्राइमरी एग्जाम में। देन उन्होंने क्या रिटर्न, वो गए नेक्स्ट में, तो रिटर्न में से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ओके, जो किस में जाएंगे, मेंस में जाएंगे। रिटर्न में जो पास होंगे वो किस में जाएंगे, मेंस में। तो F3 में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। फिर इंटरव्यू में बहुत सारे हैं, लाइक देयर आर टोटल 10 सीट्स हैं, और जो कैंडिडेट है 100 है, तो हम सिर्फ 10 का ही सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। फिर दिस इज द फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन में इसको जॉब या एडमिशन मिलेगा। तो हमारे यहाँ पास जॉब या एडमिशन की जगह क्या है, रिलीज ऑफ वैरायटी है। ओके, तो दैट मीन्स ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ pollination or selfing of F1 we achieve a homozygosity। ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे एवरी टाइम इन एवरी जनरेशन, लाइक वी ग्रो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, और उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे आर डिजायर, उनको लेंगे, उनको सेल्फ करवाएंगे, फिर उनसे जो सीड आएंगे उनसे हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो करेंगे, या जितने भी सीड्स आते हैं, फिर उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। आफ्टर दैट वी डू मैनी फील्ड ट्रायल्स, और मैनी फील्ड ट्रायल्स करने के बाद फाइनली हम उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जब वो बिल्कुल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग सेल्फिंग। तो सेल्फिंग से क्या होगा हमारे पास, एक तो होमोजाइगोसिटी आएगी, और दूसरा क्या आएगा, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, जैसे मेंडल के ही रूल हैं, ये सारे मेंडल के लॉ के हिसाब से ही हैं। जैसे देखो, यहां आया हाइब्रिड, लेकिन F2 में हमारे पास ये आ गया, तो हमें सिर्फ ये प्लांट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लांट आया नहीं, हमने इसकी क्या करी, सेल्फिंग करी, हमारे पास आया सिर्फ ये। अब देखो, इसको जब मैं सेल्फिंग करूंगा तो ऑल टाइप ऑफ प्लांट कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। इसको फिर सेल्फिंग करूंगा तो सारे प्लांट ऐसे ही आएंगे। दैट मींस आई हैव टू सेलेक्ट माय डिजायर्ड वन, और उनको बार बार सेल्फ करवाते जाऊंगा। अल्टीमेटली आई कैन डेवलप, और समवन कैन डेवलप ए वैरायटी, और आफ्टर दैट उसको रिलीज करेंगे। नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स जो इसमें आते हैं, दैट वी हैव टू सी। ओके,
Now these are the different steps in breeding a new genetic variety. Like whatever the character we want, at least we must have their parent varieties. उनके parent varieties हमारे पास नहीं होगी, वो character वो जीन होगा ही नहीं, तो हम कहाँ से नया जीन खुद तो बनाएंगे नहीं. तो very first is the collection of variability. Like there is a wheat variety. ये मानो कि there are 50 varieties of wheat in हरियाणा, 50 in राजस्थान and 50 in पंजाब. और मान लिया एक कोई रिसर्च सेंटर है लाइक HAU, और उस सब ने उन 150 वेराइटीज को 150 वेराइटीज को एक जगह इकट्ठा कर लिया इन द फॉर्म ऑफ देयर सीड. ओके, तो दैट मीन दिस प्रोसेस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. दैट मीन्स इन 150 वेराइटीज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो इनको हम क्या करेंगे कलेक्शन में, इसको हम कलेक्ट करेंगे एंड वी कैन से प्रिजर्व करेंगे. And the collection of variability is known as germplasm collection. Germplasm का मतलब होता है कि all the variability of a particular we can say species की बात कर लें और किसी एक क्रॉप की बात करें, that is known as germplasm collection. तो collection of variability करेंगे. There are many we can say variables in these varieties. जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की यील्ड ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, किसी में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, कोई पेस्ट रेजिस्टेंस है, कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, कोई किसी पर्टिकुलर डिजीज को रेजिस्टेंस है, कोई ड्रॉट टॉलरेंस है, कोई कम पानी में हो जाती है, कोई मान लिया ज़्यादा पानी हो तो भी हो जाती है, दैट मीन्स क्रॉप खराब नहीं होती. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स और वेराइटीज. देन इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. Evaluation, first we have to evaluate and select the parents के what type of parents we require. Like we want to develop a disease free high yield variety, तो हम ऐसे पेरेंट लेंगे जो एक में डिजीज फ्री हो और एक में क्या हो हाई यील्ड हो. तो उन दोनों को हम क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे और उनको इवेलुएट करेंगे जो सुपीरियर हो. आफ्टर दैट उनको हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स. तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इनकी सेल्फिंग से. तो मल्टीप्लिकेशन से क्या फायदा होगा, दैट मींस इफ वी हैव मोर वी कैन से सीड और मोर सैंपल, देन हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो इजीली लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं. तो इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स. वी हैव सीन इन चैप्टर 2 कि हाउ टू डू द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसमें हमने देखा था कि इमेस्कुलेशन और बैगिंग करते हैं, तो जिसे हम क्या करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं. तो वो प्रोसेस होगा इसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स. वही इमेस्कुलेशन का बैगिंग का टैगिंग का प्रोसेस चलेगा इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से F1, तो F1 से हम क्या करेंगे F2 F3 F4 से क्या करते जाएंगे सेल्फिंग करते जाएंगे. एंड अगेन वी हैव टू सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. दैट मीन जितने भी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स है, सुपीरियर मीन आर डिजायर्ड. लाइक देयर इज 500 प्लांट्स आए एक जनरेशन में और 500 में सिर्फ 10 प्लांट्स ऐसे थे जो हमारे डिजायर्ड थे. हम उनको सेलेक्ट किया, देन उसको सेल्फ किया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उसको सेल्फ किया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उसको सेल्फ किया. अल्टीमेटली आफ्टर मेनी जनरेशन 4 6 8 10 12 जनरेशन के बाद हमें होमोजाइगोसिटी अचीव हो जाएगी. ओके, और एक स्टेबिलिटी हो जाएगी. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे. टेस्ट कैसे करेंगे कि हम इसमें फील्ड टेस्ट करते हैं. फील्ड टेस्ट करते हैं अगर इंडिया की बात करें लाइक 3 to 4 जनरेशन तक, और वी कैन से सीजन तक. सीजन इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, नॉट जनरेशन. तो मोर सीजन तक करेंगे इन वी कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स ऐसी वैरायटी नहीं होनी चाहिए. लाइक वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात ये होनी चाहिए कि जो वैरायटी है वो वाइड स्प्रेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने आई हैव डेवलप्ड ए वैरायटी और वो सिर्फ हरियाणा में ग्रो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. वैरायटी शुड बी वाइड स्प्रेड, जिसको हम कहीं भी ग्रो कर सकें. तो इंडिया में अलग अलग जगह पर दिस इज नॉट वी कैन से नॉट मैंडेटरी बट डिजायर्ड. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ट्रायल लगाते हैं. जैसे एक हरियाणा में लगा दिया, पंजाब में लगा दिया, यूपी में या कहीं और किसी जगह लगा दिया, और उनसे फिर दैट मीन्स आफ्टर 2-3 सीजन्स में जितने भी सुपीरियर्स जो निकलेंगे और वी कैन से द डिजायर्ड कैरेक्टर निकले, उनको फिर क्या करेंगे टेस्ट करेंगे, रिलीज करेंगे एंड कमर्शलाइजेशन कर देंगे एज ए cultivar or we can say variety. So this is a very
लॉन्ग प्रोसेस, दैट मीन्स सिंपल ब्रीडिंग जो प्लांट ब्रीडिंग है दैट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू रिलीज ए वैरायटी, उसमें ये मानो 15 से 20 साल तक भी लग सकते हैं, बट दीज आर द सिंपल स्टेप्स, वी नॉट नीड टू गो इनसाइड द व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, जस्ट सिंपल। तो पहले पता ही चल जाएगा, लाइक पहले हमें कलेक्शन करना है वेरिएबिलिटी का, देन इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करना है, देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स करेंगे, फिर टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार होगा। तो दिस इज ऑल द डिफरेंट स्टेप टू डेवलप ए न्यू वेराइटी थ्रू प्लांट ब्रीडिंग। ओके, इतना ही करेंगे बस।